नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, जनआर के बी. एंड व्हाई इज माय वॉइस echoing in my ear? ये echo क्यों आ रहा है साहब? थैंक यू सो मच. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, जनआर के बी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ. प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ पर हैं? नेशन नाउ पर. नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू. आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. So Pradeep ji, of course everybody is talking about the Raj Thackeray, Uddhav Thackeray merger. Everybody is talking about the Mangeshkar Hospital in Pune. There ought to be some action against all these, the entire management of all these hospitals who've been turning patients away and so on and so forth. And of course, there is of course a major crisis at the moment brewing in Maharashtra, especially in Marathwada. There's no water. पानी नहीं है सर. बिल्कुल पानी नहीं है सर. और अभी 2 महीने और हैं. 2 months to go. जी. So there is a major crisis. I hope the government is aware of this. और वो जो पुरानी स्कीम थी आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब की, कि जल्द से जल्द बाई ट्रेन पानी पहुंचा दिया जाए हर जगह पे. I hope that happens. Those water tanker trains. Yes. But that's only a temporary measure, as you know. And as we have been saying now for the last 20 years, 23 years, you have to start recharging the underground aquifers all over the place. You have to start recharging and resurrecting all the lakes everywhere. जितनी भी lakes जहाँ पर हैं, जितने भी ponds जहाँ पर हैं, जितने भी कुएं जहाँ पर हैं, आपको उनको recharge करना पड़ेगा. And all around the area you'll have to have a cropping pattern which does not destroy the water. Because what has happened is मराठवाड़ा में और विदर्भ में, क्योंकि 3 या 4 साल के लिए बहुत अच्छी बारिश आई, सब they switched to sugarcane, and as you know, sugarcane sucks all the water from inside the soil. So I hope everybody wakes up. And this year also they predict that there's going to be more than normal, reasonable rains. Yes. It's not going to be deficit, but it's going to be plus. So, but the only thing is, Pradeep ji, at the end of the day, you need water. You need water, and you need a change in the cropping pattern. I don't know when we're going to start working on that. Yes. विदर्भ में, for example, ना जाने कितने सालों से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ कपास की खेती कर रहे हैं, कपास की बुआई कर रहे हैं, कपास की खेती कर रहे हैं, and that too cotton which nobody wants. At the end of the day, the government is buying that cotton and destroying it. most of them, yes. Exactly. I mean, what are you doing? You have to go back. You have to go back. पुरानी दाल उगाइए, मिलेट्स उगाइए. प्रधानमंत्री जी बार बार मिलेट्स उगाओ भाई, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें उगाइए. तो मतलब मेरा ये कहना है कि we should take all that very seriously, because otherwise we are looking at disaster. We really are looking at disaster. Disaster for the farmers, disaster for the nature, disaster where water is concerned. That's right. Absolutely. तो राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब, that is the news which has been dominating everybody all over the place. But if you remember, Raj Thackeray in an interview to me some time ago had said very clearly, बहुत clearly, राज ठाकरे साहब ने कहा, और उन्होंने कहा बहुत क्लियरली कि भैया देखो, अगर वो दिन कभी आया, और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, कि मुझे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को शिवसेना में विलय करना पड़ जाए, तो मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का शट डाउन कर दूंगा और पॉलिटिक्स से बाहर हो जाऊंगा. ये राज ठाकरे साहब ने कहा. एंड यू कैन एक्चुअली वॉच दैट इंटरव्यू ऑन यूट्यूब इफ यू फील लाइक. फैंटास्टिक इंटरव्यू. I mean, जबरदस्त तरीके से both were talking so well. You were talking well. Raj Thackeray was responding so well. And going to Uttar Pradesh, finally Yogi Adityanath ji has said that he's going to look at the demands of the Prajapati Kumar community. Yes. That's very good news indeed. I mean that's fantastic, because they've been agitating now for the last 20 years, 20 साल से, कि भाई आप जो हैं, हमको आप शेड्यूल कास्ट में डालिए, आपने ओबीसी में क्यों डाला हुआ है? तो मतलब I hope the chief minister can do something, though what can he do? I am not sure. I am not sure at all, because what can he possibly do? क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर आप एक और कम्युनिटी को डालते हैं, तो all the Dalits are going to agitate. कि that means so much less for them. In any event, I think we've got प्रजापति साहब with us. शायद प्रजापति साहब हमारे साथ हैं, और निजाम साहब भी हमारे साथ हैं. निजामुद्दीन रहीम साहब, lovely to see you sir. निजाम साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. और प्रजापति साहब नमस्कार. प्रजापति साहब लखनऊ इस वक्त बधाइयों से. नमस्कार. लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू प्रजापति साहब. प्रजापति साहब, सुनने में ये आया है कि वास्तविकता में कुछ रिस्पांस आया है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, उत्तर प्रदेश से, कि भाई प्रजापति समुदाय की जो डिमांड है उसको लेकर के कुछ एक्शन शायद होगा. ऐसा कुछ है सर प्रजापति साहब? नहीं राजीव जी, अभी हमारे
जनप्रतिनिधि है, भाजपा के ही एक विधायक हैं मनोज प्रजापति जी, जी और एक हमारे समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, जी और भाजपा के दूसरे एक और वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश जी। कई लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और उन तीनों लोगों से मेरी वार्तालाप हुई है, लेकिन केवल मात्र आश्वासन मिला है, और इस आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे आश्वासन से कभी कुछ हुआ नहीं। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जब भी ऐसा हुआ तो उनके साथ दिक्कत ये रही कि केंद्र में सरकार किसी और राज्य में किसी और की होती थी। लेकिन इस समय डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। जी लागू कर सकते हैं, जब संविधान में संशोधन करके वक्फ बिल ला सकते हैं, जब संविधान में संशोधन करके 370 हटा सकते हैं, संविधान में संशोधन करके 3 तलाक जैसे मुद्दों को कर सकते हैं, जब संविधान में संशोधन करके किसी भी जाति को पिछड़ी जाति से निकालना है, इसका अधिकार राज्य सरकार को दे सकते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि कुछ इस इलाज का परमानेंट इलाज कर दिया जाए, और केंद्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी केंद्र से कोऑपरेट करके, केंद्र के साथ सहभागिता करके, केंद्र के नेताओं के साथ आपस में इंटरेक्शन करके इस जो लड़ाई है हमारी, बहुत पुरानी लड़ाई है, इस लड़ाई को खत्म करें पूरी तरीके से, चाहे वो संविधान में संशोधन करके करें। फिलहाल तो बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि शिल्पकार में राजीव जी आज एक और बात बताऊं आपको कि सन 1900 पहले भी बताई थी मैंने, सन 1950 में जब संविधान की अनुसूची जारी हुई, अनुसूचित जाति की, उसमें कुम्हार था ही नहीं, उसमें शिल्पकार था, और शिल्पकार में कुम्हार वर्णित था। शिल्पकार 65वें क्रमांक पर था, और उसमें 65वें क्रमांक में जो शिल्पकार था उसमें 26 जातियां थी, उस 26 जातियों में शिल्पकार 6ठे नंबर पर था। तो हमेशा कुम्हार के पहले प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, कुम्हार के प्रमाण पत्र सन 1957 से बनना शुरू हुए हैं। उससे पहले कुम्हार के शिल्पकार के रूप में ही प्रमाण पत्र बनते थे और अनुसूचित जाति के बनते थे। तो मेरी मांग ये है कि उसी पुराने सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए, 1950 के सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि प्रदेश के 7-8 जिलों में हम लोग इस तरीके के प्रमाण पत्र जारी करवा रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम, उनके लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वो वास्तव में सबका साथ और सबका विकास करने की बात करते हैं, और वास्तव में प्रजापति कुम्हार शिल्पकार को हिंदू मानते हैं और हिंदू जातियों का अभिन्न अंग मानते हैं, तो शिल्पकार के रूप में सारे डीएम 75 उत्तर प्रदेश के सभी 75 डीएम को आदेश करें कि शिल्पकार के रूप में कुम्हार के प्रमाण पत्र जारी किए जाए, क्योंकि किसी भी जाति को सत्यापित करने का कार्य जिले के जिला अधिकारी को होता है। जिले का अधिकारी अगर ये कहेगा कि ये जाति अनुसूचित जाति के श्रेणी में आती है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर कानपुर में आ रहा है, इसको संज्ञान में लिया गया है, केवल इतना संज्ञान में लिया गया है कि हमारे कुछ लोग वहां मिले हैं, लेकिन आगे उससे कुछ प्रोसेस नहीं बढ़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं केंद्र से वार्तालाप करूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है कि जिससे कि आगे केंद्र में बात करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, जो जैसा आपने समझाया ये तो स्टेट लेवल पे ही हो सकता है, केंद्र में बात करने की जरूरत क्या है? और प्राइम मिनिस्टर प्रजापति जी, प्राइम मिनिस्टर कानपुर में हाल ही में आ रहे हैं, योगी जी तैयारी कर रहे हैं कानपुर में उनका रिसीव करने के लिए। क्या ये एक शुभ व्यवस्था मीन्स वातावरण है कि प्रजापति समाज अपने प्रॉब्लम्स को प्राइम मिनिस्टर के सामने हाईलाइट करे, जहां प्राइम मिनिस्टर भी है, योगी जी भी है, कानपुर में जबरदस्त तरीके से स्वागत का तैयारी कर रहे हैं योगी जी प्राइम मिनिस्टर का? प्रदीप जी, देखिए प्रदीप जी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हम समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। अगर कोई हमें वार्तालाप के लिए कोई बुलाता है तो हम निश्चित रूप से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मांग लेकर के उनके पास ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि पता चले कल को हम पर मुकदमा लिख दें कि आप वहां अव्यवस्था फैलाने गए थे, आप वहां पर जो है कुछ गलत करने के लिए गए थे। तो इसलिए हमें ये भी डर है। हाँ, अगर उनका कोई प्रतिनिधि, जैसा कि उस दिन शैलेश पांडे जी उनके एक जो है
प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था मैं कोऑपरेट करूंगा, मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा बीच में। तो ऐसे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कोऑर्डिनेशन करता है तो हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, हम लोग उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, हम अपनी मांग उनके समक्ष रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ही हम अगर वहां जाते हैं तो हम जैसे लोगों के लिए शायद असुविधा भी हो सकती है। तो मैं तो चाहूंगा शैलेश जी ने उस दिन कहा था राजीव जी के माध्यम से के बीच में करके इस मुद्दे को मैं सुलझाने का प्रयास करूंगा, तो कोऑर्डिनेशन किया जाए। आज भाजपा के प्रवक्ता कौन से बैठे हैं मैं उनसे ही कहूंगा, मुझे नहीं पता आज अभी कौन से भाजपा के प्रवक्ता विनायक अंबेकर साहब हैं सर, कोऑर्डिनेशन करें। वेरी सीनियर मैन, बहुत सीनियर आदमी है विनायक अंबेकर साहब पुणे से। वो बस हमें ज्वाइन करने वाले हैं आधे मिनट में, मैंने देख लिया उनकी शक्ल देख ली, वो बस आने वाले हैं। आई एम श्योर ही विल कोऑपरेट आल्सो विद यू। लेकिन मुझे जो खबर आ रही है सर, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। विनायक अंबेकर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर, जय सिया राम। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? तो और निजाम साहब आप भी सुन ले। और राकेश प्रजापति जी, जो मुझको मालूम पड़ रहा है अभी जो खबर आ रही है लखनऊ से, वो ये है कि आप लोगों की जो डिमांड है, क्योंकि प्रजापति समाज यानी प्रजापति कुम्हार समाज, पॉटर समाज जो है, वो 20-25 साल से इसके लिए एजिटेट कर रहा है कि भाई जो पहला स्टेटस था हमारा 1950s में, उसी को रिवर्ट किया जाए, हमें ओबीसी से निकाला जाए और अनुसूचित जातियों में डाला जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत गंभीर हैं। और मुझको ऐसा लगता है, जैसे प्रदीप जी ने अभी अभी कहा, प्रधानमंत्री जी जब कानपुर पहुंचेंगे इस विषय के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा होगी, उनसे ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री जी से। और यह भी मालूम पड़ा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब और होम सेक्रेटरी साहब की भी बात हुई है इसके ऊपर। तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है प्रजापति साहब। ये खबर शायद आपको मालूम नहीं होगी, आपको यहीं पर नेशन नाउ पे आरकेबी शो में सबसे पहले ये खबर मिल रही है सर। तो आप बाद में 1-1.5 महीने के बाद जब इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, आप योगी आदित्यनाथ जी को थैंक यू भी बोल दीजिएगा, इसके बावजूद कि आप समाजवादी पार्टी के हैं। कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में प्रजापति जी? बोलिए सर। नहीं, देखिए राजीव जी, मैं एक शिक्षक भी हूँ जी, और एक शिक्षक जो है हमेशा सत्य को सत्य कहता है, उसमें कोई बेकार वो नहीं है, स्वीकारोक्ति। अगर योगी जी कोई अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें धन्यवाद बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे धन्यवाद बोलने में। अगर वो समाज की हमारी इस लड़ाई को निश्चित रूप से अगर वो करते हैं तो मैं उन्हें धन्यवाद कहूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत ये है, इसमें पार्टी का टाइम की लाइन से कोई मतलब नहीं है सर। 100% ये 100% करेक्ट है खबर कि जब तक हक हुकूक और हक हिस्सेदारी भागीदारी की बात हमारी पूरी नहीं होती है, हम इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ने का काम करेंगे और उसको हर स्तर पर लड़ने का कार्य। वंडरफुल सर। सो लेट मी गो अक्रॉस नाउ टू निजामुद्दीन रहीम साहब। निजामुद्दीन रहीम साहब, पिछले दिनों जब आप लास्ट टाइम हमारे साथ शो में थे, आपने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो दाऊदी बोहरा डेलीगेशन जो मिलने को आई, आपने ये कहा था कि वो एक्चुअली बोहरास के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा करके आपने बोला था। और उसके बारे में कुछ बताएंगे सर, वक्फ बोर्ड को लेकर? ऐसा नहीं बोला था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जी। हमने ये कहा था कि दाऊदी बोहरास का जो डेलीगेशन गया था प्राइम मिनिस्टर को मिलने जी, तो प्रधानमंत्री महोदय ने डेलीगेशन के सामने एक जिक्र किया, जब उन्होंने उनके बारे में सैयदना साहब जो अभी हैं करण सैयदना जी के बेटे, उनका थैंक्स कर रहे थे कि सर आपने ऐसा ऐसा कानून लाया, तो उसके लिए हम जो है आपके लिए आपका थैंक्स करने आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने माइक लेकर उसमें साफ शब्दों में ये कहा कि पिछले 3 वर्षों से मेरा कोऑर्डिनेशन था उनके साथ, यानी सैयदना के साथ, उनके परमिशन से, बल्कि उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया, यहाँ तक कि फुल स्टाफ कामा और जो कुछ भी उसमें लगा है वो हम जो है उनकी वजह से कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसका रिजल्ट ये होगा कि प्रधानमंत्री 3 साल पहले ये अमेंडमेंट लाना चाहते थे और बोहरास के कहने पे लाना चाह रहे। तो ये तो बोहरास और सुन्नी देवबंदियों में झगड़ा कराने की बात है, जबकि इस तरह की तो झगड़ा हो गया क्या पहले? सर सुनने में आया कि कई जगह पर पोस्टर लग गए हैं, बॉयकॉट बोहरास ऐसा करके लग गए, बाइकआउट करने की बात हो रही है, जबकि उन्होंने ये बात नहीं कही है। दूसरी चीज है कि वफ अमेंडमेंट में 1924 से पहले बोहरास जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहने का कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि इनका जो कल्चर है बोहरास का, उसमें हमारे यहाँ और इनके यहाँ वफ जो है अलग अलग है। हमारे यहाँ वफ जो है कम्युनिटी करती है या कोई व्यक्तिगत आदमी करता है जो बोर्ड को जाता है या जो संभालेगा वफ की जमीन को उसको जाता है।
बोहराज के यहाँ इनके सैयदना खुद दाइये अल मुतलक हैं, तो यानी खुदा के बाद उनका जो दर्जा है उनका है, इसलिए उनको ना तो कोई जमीन डोनेट कर सकता है, ना वो किसी से उसमें उनके आगे कोई मुतवल्ली हो सकता है। तो जब कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता तो फिर हमारा उनके झगड़े का इशू नहीं है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ पहले ही बात कर रखा है कि हमको आपके साथ नहीं रहना, ऐसा ऑलरेडी बोर्ड के साथ उनका हुआ है चर्चा। तब मोदी जी कहां से झूठ बोल रहे हैं सर? निजामुद्दीन जी वो उनका वर्डिंग्स क्या है? माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज आर बीइंग प्रोटेक्टेड। उन्होंने कहा मोदी जी आपने माइनॉरिटी में माइनॉरिटी को सुरक्षा प्रदान किया है, इसलिए हम आपके आभारी है। फिर सुनिए, हाँ, तो ये माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी क्या आप इग्नोर कर रहे थे निजामुद्दीन जी? आप फिर से सुन लीजिए नामबियार जी, उनका वीडियो मेरे पास है, चाहिए तो मैं अभी साउंड करके आपको सुना देता हूं। हाँ। उन्होंने बिल्कुल माइनॉरिटीज का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि कहीं से लोग उठकर आके इस प्रॉपर्टी पे दावा करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने भिंडी बाजार में एक सेपरेट जगह खरीदी और उसको जो है नासिक से कोई आके उन्होंने दावा कर दिया कि मेरे वक्त की जगह। देखिए ये भी सब चीजें गलत है। तो ये सब जो चीजें कराई जा रही हैं ये धोखा देने का काम है, क्योंकि अमेंडमेंट बिल लाना सरकार के बस में है, वो किसका बिल लाती है क्या करती है। लेकिन अगर संसद में 2/3 आपकी मेजोरिटी नहीं है, जबरन आपने उस बिल को पास कराया है, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे सवालात पूछे हैं उनके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था, उनको टाइम लेना पड़ा। तो इसलिए ये बिल्कुल धोखा है। लेकिन निजाम साहब एक छोटा सा सवाल, सर एक छोटा सवाल। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद निजाम साहब। मैं आप अपने बाकी दोनों जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन हैं उनको बता दूं कि आज की तारीख में अगर एमआरसीसी की बागडोर किसी ने संभाल रखी है तो वो निजामुद्दीन रहीम साहब हैं। हमारे रिपोर्टर भी बताते हैं कि हर रोज 12:30 बजे के बाद 6:30 बजे तक सिर्फ एक ही कार्यकर्ता और एक ही स्पोक्स पर्सन और एक ही लीडर वहां पर होते हैं एमआरसीसी में। ज्यादातर वो होते हैं निजामुद्दीन रहीम साहब। बाकी को ढूंढती रहिए मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो नहीं आते। निजाम साहब अभी भी बिल्कुल सिंसियर हैं कांग्रेस के प्रति। फॉर दैट यू नीड टू बी कंग्रेचुलेटेड सर। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस आपकी इस सुदृढ़ता को जरूर कभी ना कभी रिकॉग्नाइज करेगी और आपको वो दर्जा देगी जो कि आपको देना चाहिए। लेकिन यहां पर सर जो आपने बात कही ना 2/3 मेजोरिटी की, सर दिस वाज प्रेजेंटेड एज अ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। वो एक ही वोट से अगर जीत जाए तो जीत सकते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर। सवाल इसका नहीं है सर, ये बेसिकली किसी कम्युनिटी का विषय है, ये राष्ट्र का विषय नहीं है, ये किसी समाज दूसरे समाज का नहीं। एक सेपरेट सब्जेक्ट सिर्फ मुसलमानों का है। और दूसरी चीज सरकार का उससे क्या संबंध है आप मुझे बताइए। सरकार का संबंध है 1 इंच जमीन दी है क्या, बल्कि सरकार की नीयत खराब है, उस जमीनों को तो निजाम साहब बहुत मोहब्बत है। आई एग्री विद यू सर। जो आपने कहा इन प्रिंसिपल उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपके खिलाफ मैं कोई आर्ग्यूमेंट पेश नहीं कर सकता। जो अगर इन प्रिंसिपल अगर आप ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास अंबेडकर साहब, 1 सेकंड। आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू से, आई एम सेइंग इट फॉर यू, 1 सेकंड। लेकिन सर आप ही के डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस गौरव गोगोई साहब ने लोकसभा में कहा, आपने भी डिबेट सुनी, मैंने भी सुनी, सबने सुनी। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड का जो लॉ अभी है, वक्फ बिल जो अभी है, वक्फ एक्ट जो अभी है, सॉरी, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, संशोधन की जरूरत है। उन्होंने खुद माना है सर कि वी नीड अमेंडमेंट्स टू द वक्फ बोर्ड एक्ट। That's what गौरव गोगोई साहब himself said। वही मैं आपको कह रहा हूं। तो दो बार अमेंडमेंट हुआ ना सर। 2 बार जब अमेंडमेंट हुआ तब जेटली जी मौजूद थे, सुषमा स्वराज जी थी, इन्होंने बहुमत से उस अमेंडमेंट को पास कराया ना। तो आज ये क्यों कह रहे हैं सर? वो गलती हो गई बीजेपी से उस वक्त गलती हो गई। झूठे थे और ये सच है जी, वो उस वक्त गलती हो गई। जो कह रहे हैं सर, ये जो कह रहे हैं कि हम उस आज की बता रहा हूं, आज इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कहा है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इससे जो है फंडिंग करेंगे और मुस्लिम औरतों का अपलिमेंट करेंगे। तो आप ये बताएं कि सर आप जमीनें बेचकर अपलिमेंट करेंगे इनका? और जमीनें मुसलमानों के पास जो 9 लाख हेक्टेयर की ये बात करते हैं उसका 80% जमीन है सर, या तो कब्रिस्तान है, या मस्जिदें हैं, या खानकाह हैं, या दरगाहें। आई एग्री विद यू, बट आई डोंट थिंक इवन यू निजाम साहब आप भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि 32 वक्फ बोर्ड जो हैं हिंदुस्तान के, उनके पास कौन कौन सी जमीनें हैं उसका ऑडिट होना चाहिए ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप मुझे एक सर 1 सेकंड में आता हूं आपके पास। सर अभी तक अंबेडकर साहब बोले नहीं है सर। अभी तक नहीं कह रहा हूं कि क्या नहीं
सर सर प्लीज। जो आपने सुना होगा कि रिजाजू जी जब पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर रहे जी थे, जी। तो उन्होंने ये कहा कि सारी प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन हो चुका नहीं है, हुआ सर, सब सारी का नहीं हुआ, डिजिटल उन्होंने ऐसा कर नहीं रहे हो, बोला सब तैयार सर, है। उन्होंने ये भी एक 46%। झूठ है सर, ये भी बड़ा सर झूठ है। 46% बोला सर कि 46%। 25 वक्फ बोर्ड के पास 5673 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जो डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, सरकारी। उसमें एएसआई के 132 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। अब एएसआई के 132 Just go to प्रोटेक्टेड Ambedkar मॉन्यूमेंट्स, yeah, you can come back, but if you want to comment, Sir, we'll come back तो to- पब्लिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 200 साल 300 साल 400 साल से जमीनें वक्फ है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल तो पूछा जो हम सब पूछ रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि कागज कहां से सर लाएंगे वील आप? कम टू द सुप्रीम कोर्ट नाउ, वील कम टू द सर सुप्रीम आप खुद कोर्ट। आते हैं। सोचिए ना कि 200 साल पहले किसी ने अपनी जमीन डोनेट किया, तो 200 साल में दस्तावेज कौन रखेगा सर? जी, और तब आते हैं सर। कौन सा जो है डिजिटल ला कर सर आते हैं, उसके बाद आते हैं। निजामुद्दीन जी, आते हैं। 132 एएसआई प्रॉपर्टीज कहां से करोगे? ठीक है, यू कैन कम बैक टू सर आते हैं, सर आते हैं निजाम साहब आपके पास आते हैं। आपके मान है सर सिर्फ सर जस्टिस, मुसलमानों की जमीन, लेकिन निजाम साहब आपको एक चीज बता दूं, अंबानी को दे दो, निजाम साहब आपको एक चीज बता दूं, और प्रजापति साहब आपको भी एक चीज बता दूं। सिर्फ संजीव खन्ना साहब के, ऑनरेबल सीजेआई संजीव खन्ना साहब के पहले के कथन के ऊपर मत जाइए, फाइनल ऑर्डर का वेट कीजिए सर। जो उनका फाइनल ऑर्डर आएगा, वी हैव टू वेट फॉर दैट। ये तो पहला उनका रिएक्शन है ना। लेट मी गो टू अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब, द पॉइंट इज एवरीबडी इन द हाउस एग्रीज, एवरीबडी अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 पीपल, कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी 2 या 3 लोगों ने कहा, बाकी सब लोगों का यही मत था कि अमेंडमेंट होना चाहिए। लेकिन जो सामने से क्रिटिसिज्म आ रहा है सर, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल वक्फ बाय यूजर, तो दैट्स अ टेरिबल अमेंडमेंट। दैट वाज अ टेरिबल अमेंडमेंट ऑफ 2013। लेट्स फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट द बीजेपी डिड नॉट ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम, वी आर डूइंग इट नाउ। दैट कुड हैव गॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 32 वक्फ बोर्ड जो हैं अंबेडकर साहब, उसमें कहीं पर भी धांधली हुई है, और महाराष्ट्र में तो ऐसे केसेस हैं, हमें खुद को धांधली का मालूम है, पता नहीं कितने केसेस हमारे पास आए हैं सर। द प्रेजेंट लॉ, आज का जो लॉ है हिंदुस्तान का, वो सक्षम है इसको डील करने में। तो इतनी बड़ी अमेंडमेंट लाने की, बिल लाने की क्या जरूरत थी? ये कहा जा रहा है, जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं, जैसे कई कांग्रेस के लोग कहते हैं, जैसे कई समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, कि आप जान करके मुस्लिम कौम को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये लेकर आए। अब अंबेडकर साहब आप बोले, प्लीज गो अहेड सर। भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, जी। उसमें से वक्फ के बारे में कितने अवेयर है, ये पहला मेरा सवाल है। जी। तो 90% लोग अवेयर नहीं है। जो बात लोकसभा में हर व्यक्ति ने रखी, उसमें ऐसी रखी कि 9 लाख हेक्टेयर इनके पास जगह है, मगर इनका जो इनकम है वो खाली 163 करोड़ रुपया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जगह कीमती है, सिटी में है, टाउन में है, सब जगह है, और उसमें खेती हो सकती, इंडस्ट्री चल सकती, व्यापार हो सकता, सभी चालू है। मगर क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि ये जो 163 करोड़ खाली वक्फ के पास आ रहा है, ऊपर का जो हजारों करोड़ रुपया है, वो जो इनके नेता है, ठराविक नेता, उनके खिसे में जा रहा है। तो ये मेन बात है, इसके लिए ये एक्ट लाने की बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये वक्फ का जो मूल उद्देश्य है, वो मुस्लिम समाज के जो नीचे हुए तबके हैं, जिसमें महिलाएं आती है और गरीब मुस्लिम आता है, उसके बेनिफिट के लिए वक्फ का प्रयोजन है। तो उनका बेनिफिट नहीं होता है, होता है बेनिफिट किसका? तो ये लोगों का, ये जो नेता लोग हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में जो वीडियो आया है, और एक वो मौलवी का वीडियो है हैदराबाद के, हमारा वीडियो नहीं है, उसने 1000 बीघा जमीन खुद के कब्जे में लेके उसका वो रेंट खा रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी। अहमद अकबर डंपी करके कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसने 100 हेक्टर पे अपना रिसोर्ट बना हुआ है, उसका इनकम वो खा रहा है, वो जमीन वक्फ की है। ऐसे हजारों प्रॉपर्टीज है। इतना 9 लाख हेक्टर जमीन होके, एकड़ जमीन होके, यदि मुस्लिम समाज के सामान्य आदमी गरीब रहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि बीच में कुछ तो भी दाल में काला है। और ये जो लीडर है जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज का ऐसा कहना है, मुस्लिम समाज का ऐसा कुछ कहना नहीं है। आपने बहुत सही कहा कि ये दाऊदी बोहरा लोग गए थे,
उनको क्या तकलीफ होती है, जो मेरे समझ में आई वो ऐसी तकलीफ है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में उनको उधर ही जाना पड़ता है। और आज के जो वक्फ ट्राइब्यूनल के ड्रैकोनियन रूल्स है कि तुम्हारे स्टेट पे आके वक्फ बोर्ड अपनी कब्जा बोलेगा, वो शासन को नोटिस देगा, कलेक्टर को, कि इनके 10 इसमें लैंड रिकॉर्ड में हमारा नाम लगाओ, और यदि 6 महीने में उसका नोटिस जो अभी यूजर है, जो मालक है, उसको जाएगा नहीं, और 6 महीने के अंदर यदि उसको अपील नहीं किया तो वह अपने आप वक्फ का प्रॉपर्टी बन जाता है। ऐसे जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस है उसको बदलने की जरूरत है। जो तमिलनाडु का फेमस एग्जाम्पल है कि ये लोग बोल रहे हैं कि 300 साल से हमको वक्फ में मिला है जमीन, 1500 साल से वो मंदिर है, पुरातत्व खाते का सर्टिफिकेट है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि ये मंदिर 1500 साल पुराना है, तो इनके पास 300 साल के डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गए? तो ये जो बोल रहे हैं ये खाली 10% जो मुस्लिम लीडर्स है जिनको मलिदा मिल रहा है और जो माल खा रहे मुस्लिमों के नाम पे, उनका कहना है। सामान्य मुस्लिम इससे खुश है। Vinayak Ambedkar साहब, the Muslim community feels that Modi government is encroaching in the fundamental rights of Muslim community. The fundamental rights given to them protected under constitution. आप उनके internal freedom, उनके religious freedom, उसको लगातार अटैक कर रहे हो. This is infringement, encroachment into the fundamental rights. बेसिकली एक बात समझ के लिए, कोई मदरसा रहो, कोई दरगाह रहो, कोई भी धार्मिक स्थल रहो, उसका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड करता नहीं है। उसका मैनेजमेंट उधर का जो कोई ये रहेगा, रिलीजियस प्रीचर रहेगा, वो करता है। रिलीजियस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी सवाल किधर आता है वक्फ बोर्ड का? कोई नया प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में डालना या जूना प्रॉपर्टी रहेगा उसका रिकॉर्ड करना, ये दो ही चीज में वक्फ बोर्ड का संबंध आता है। और ये वक्फ एक्ट जो है पूरा टोटली ये लैंड रिकॉर्ड्स को स्ट्रेट करने के लिए अमेंडमेंट कर दिया गया है। मुस्लिमों ने अपना प्रार्थना कैसे करना, अपना नमाज कैसे पढ़ना, अपने भगवान की भक्ति कैसे करना, ऐसा कोई भी प्रावधान इस वक्फ एक्ट में आता नहीं है, ना तो उसका कोई संबंध है। तो इनके रिलीजियस अफेयर्स पे कहाँ पे कोई गड़बड़ी? That's what the Home Minister said, sir. अंबेडकर साहब, let me remind people, अमित शाह साहब ने ये कहा कि वक्फ के अंदर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वक्फ इज सेपरेट, द बोर्ड इज सेपरेट। करेक्ट। जो बोर्ड है यानी हाउ वक्फ इज ऑपरेटेड, वक्फ का मतलब होता है आपने जमीन वक्फ कर दी अल्लाह के काम के लिए, एंड दैट वक्फ लैंड कैन नेवर बी सोल्ड, कैन नेवर बी डिस्ट्रिक्ट। आपने तो एक एग्जांपल दिया सर, 1500-1800 साल पुराना जो मंदिर है तमिलनाडु का। अब प्रॉब्लम वहां पे कहां पे अराइज हुई? द प्रॉब्लम अरोज व्हेन द विलेजर्स अराउंड इट, जो खेती कर रहे थे, वो बेचारा अपनी बेटी की शादी के लिए वो लोन लेने को गया, तो उसने कहा साहब वक्फ से, यहां का जो तमिलनाडु का वक्फ बोर्ड है, तुम्हें उससे साले एनओसी लानी पड़ेगी। कहता यार ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, तो इट केम आउट। लेकिन मेरा एक और चीज कहना है, यह भी कहा जा रहा है सर, इसके बारे में जरा आप बताएं। बीजेपी की तरफ से यह बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है, उसके बाद आई एम श्योर निजाम साहब इसके बारे में बात करेंगे, हमारे प्रजापति साहब भी इसके बारे में बोलेंगे। प्रजापति साहब बाय द वे इज फ्रॉम द, इफ यू डोंट नो, ही इज अ प्रोफेसर, ही इज फ्रॉम बदायूं, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। शकील बदायूनी की साहब के शहर से हैं, and one of the most wonderful people you will ever come across. He is a very well read man, sir. Now the point is, sir, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने, कोई भी प्रधानमंत्री हो, and I've been a journalist now for the last God knows how many years, even I've forgotten how many years. I got my first job in 1982. Aruna Asaf Ali ji was kind enough to give me a job in Patriot newspaper in Delhi. Now, my point is, sir, पहली बार मैंने किसी प्रधानमंत्री को देखा है, हो सकता है कि निजाम साहब को ये बात अच्छी ना लगे, मुझे मालूम नहीं है, और एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच वाज फ्रॉम द कांग्रेस, बाय द वे, कांग्रेस फैमिली से आता हूं मैं ये बता दूं सर आपको, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मुसलमानों में जो अशराफ हैं दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। वो 10% से, आपने 10% बहुत बड़ा बता दिया सर, 5% है, उसके नीचे आते हैं अजलाफ और उसके नीचे आते हैं अजलाफ। तो सर, और स्पेशली जो अजलाफ हैं बेचारे, जो धोबी, मोची, तेली, नाई, इन सब लोगों के बारे में नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट देम। ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात करी है। लेकिन यहां पर एक और चीज आती है, अगर वास्तविकता में, मैं आपसे पूछता हूं सर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल, वास्तविकता में, असल में, प्रजापति साहब सुनिए,
ये रिलेटेड है आपके सवाल से। अगर वास्तविकता में प्रधानमंत्री जी को इतनी फिक्र है गरीब मुसलमानों की, बेचारों की, जिनको छोटी जाति के मुसलमान बोलते हैं, तो सर वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो है, विच वॉज अ फॉलो अप टू दी सच्चर कमेटी रिपोर्ट, हर एक कोई सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बारे में बात करता है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट इज अ वेरी स्मॉल डॉक्यूमेंट, द रियल डॉक्यूमेंट इज द रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट। तो सर उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? अगर मान लीजिए वास्तविकता में मुसलमानों की इतनी फिक्र है, फॉरगेट मुस्लिम्स, अगर माइनॉरिटीज की इतनी फिक्र है, इनफैक्ट टुडे इवन इन केरला, प्रदीप भाई कम्स फ्रॉम केरला एंड ही विल bear me out, there are churches, in churches sir, all the upper caste, all those who converted from Brahmins to Christians, they sit in the front pews and all the others are, you know, relegated to the back rows even now. So my point is, अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र है सर, तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो which has been laid on the table of the house, it has been laid there, उसको इंप्लीमेंट कीजिए सर, ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। उसके ऊपर एक फर्स्ट क्लास डिस्कशन कीजिए। अब आप बोलें सर, अम्बेडकर साहब प्लीज गो अहेड। सर जरूर करेंगे। आपने जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम बोला जी। वो हर लैंड में, हर कंट्री में, हर समाज में होता है कि जी। जो अपर कास्ट है वो लोग डोमिनेट करते हैं। जैसा आपने बोला अशरफी का और पसमंदा का जो लफड़ा जी, चालू जी, है, जी। तो पसमंदाओं को कुछ मिलता नहीं है। नहीं पसमंदा मिलता, कौन नहीं मिलता। है? जो हिंदू समाज से कन्वर्ट होके, और ये लोग उनको भी नाई बोलते, किसी को धोबी बोलते, किसी को क्या बोलते हैं, तो उनका जो ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है वो वैसा के वैसा रह गया। और उनके ऊपर रूल कौन करते? तो अशरफी रूल करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हर समाज में है। कोई भी कमीशन, जैसा हम अभी बोलते हैं कि एससी एसटी के लिए हमने कमीशन किया, उनको लीगल स्टेटस दिया, सब किया, मगर माइनॉरिटीज विद इन माइनॉरिटीज, ये आज प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, ये आ रहा है। तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम जो है वो हर समाज में है। एक एक स्टेप लेके आके जाएंगे। पहले इन लोगों का जो खाइकी है वो खाइकी बंद कर दिया, इन लोगों का जो मोनोपोली है वो बंद कर दिया, तो फिर हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि जी, जब प्लीज। इनके पास बहुत पैसा होगा वक्त के पास, कि जो गरीबों में बांटा सकता है, महिलाओं को दिया जा सकता है, हमारी बहनाओं को दिया जा सकता है, तो अपने आप आधे प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व होंगे ना सर। अंबेडकर साहब, बट प्रॉब्लम यह है कि कंटिन्यूस मुस्लिम कम्युनिटी इज फीलिंग विक्टिमाइज्ड। आर्टिकल 370 से शुरू कर दिया आपने, उसके बाद राम टेम्पल, राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया, अब वक्फ रिफॉर्म्स के माध्यम से फिर आप मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा डिसओरिएंटेड कर दिया, अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हो। अंबेडकर साहब, यू आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कब तक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद 11 साल में इतना अटैक, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम, तो दे फील डिसओरिएंटेड। अंबेडकर साहब की विक्टिमाइज। नहीं, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि आप जैसे लर्नेड आदमी ने ऐसा सवाल पूछा, उसका मेरे दुख हो गया। वो हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या? हमारे देश के जो सुख दुख है उसमें उनका सहकार्य नहीं है क्या? उनकी भागीदारी नहीं है क्या? तो है। 370 क्यों हटाया गया? 370 इसलिए हटाया गया, सेम प्रॉब्लम वाज देयर। मैं जो अभी बोला, हर समाज में, हर तबके में, हर एरिया में, हर जियोग्राफी में ये प्रॉब्लम रहता है। 3 families were controlling Kashmir 5 for last 70 years। 5 families, 5 5 families। 5 families, तो ये लोग जो कंट्रोल कर रहे थे, तो सामान्य कश्मीरी को क्या मिल रहा था? उधर भी सेम प्रॉब्लम था। उधर भी मुस्लिमों के जो SC ST है उनको क्या मिल रहा था? उनको कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि टेंडर इनके, परसेंटेज इनका, सत्ता इनकी, चुन के यही आएंगे और यही लोगों को भड़काएंगे और उनको पत्थरबाजी करने को लगाएंगे। ये सब जो नाटक था ना, उसके लिए 370 लाया गया। सेम केस विथ वक्फ बोर्ड है कि ये जो पुढ़ारी लोग हैं, मुस्लिमों को बरगलाने वाले जो पुढ़ारी लोग हैं, इनको थोड़ा सा चेक हो जाएगा। सबसे ज्यादा भड़का कौन है? ओवैसी भड़के है, ओवैसी साहब भड़के है। उनका 1000 बीघा का हिसाब देने दो उनको, उनके पास कहाँ से संपत्ति आई, सब अपने मुस्लिम भाइयों को दो, मोदी जी को मत दो, हमको मत दो। उनको जाके बोलो कि यस, मैं गए 70 साल से इसका यूज कर रहा था, इतना पैसा मैंने जमा किया, ये लो तुम्हारे समाज का हिस्सा, ऐसा बोलो ना जाके। जी, दुरुस्त बात बोलने है। को तैयार नहीं है। तो लेट मी गो अक्रॉस टू प्रजापति साहब। प्रजापति साहब, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सिंसियर है? जहां तक वक्फ बोर्ड का प्रश्न है, हर चीज में क्या, जब मोदी जी बात करते हैं, अरे सर निजाम साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड सर, प्रजापति साहब को बोलने देना सर, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। आप वी गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आप इत्मीनान रखें। प्रजापति साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है इस बार, ईमानदारी से काम कर रहे हैं? प्रजापति साहब सर, मुझे एक चीज बताइए कि सर, मैं प्रजापति साहब से पूछ लूं,
सर प्रजापति साहब से की पूछ जो लो। ताकत है वो आती है सरकारों से। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताएं कि 15 राज्यों में इनकी सरकार है, इनको आज और इनके मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको मुस्लिम महिलाओं से बड़ा लगाव हो गया है कि मुस्लिम महिलाओं का अपलिफ्टमेंट करेंगे। इनकी 15 राज्यों में जहां सरकार है, ये बताएं कि आज तक इन्होंने एक भी मुस्लिम महिला को इन्होंने कहीं बनाया क्या? किसी को एमएलसी बनाया, किसी को एमएलए बनाया क्या? 3 टर्म माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात में, उन्होंने एक भी मुसलमान का अपलिफ्टमेंट किया है क्या? राकेश प्रजापति जी, लोकसभा में उन्होंने निजाम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। निजाम साहब, राकेश प्रजापति जी बदायूं से हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं उनसे जरा बात कर लूं, मैं आपके पास आता हूं। प्रजापति जी, जो अभी निजाम साहब ने कहा अगर उसके ऊपर भी आप टिप्पणी कर दें तो अच्छा रहेगा। आप बताएं, क्या मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं, नीतीश कुमार साहब भी शामिल हैं, अन्य लोग भी शामिल हैं, क्या इस बार ईमानदारी से काम कर रही है वक्फ बोर्ड के मैटर पे? आप बोलें सर। प्रजापति जी। देखिए राजीव जी सर, इस देश में मैं तो पूरी तरीके से कह रहा हूं लोकतंत्र बड़े खतरे में आ चुका है जी। इस देश में जब तक इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर डिबेट होती रहेंगी तब तक इस देश को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि अब तक क्या था राजीव जी, अभी आपको पता ही होगा कि अब तक मस्जिदों के नीचे ही मंदिर तलाशे जा रहे थे। तब तक तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक मुस्लिम कम्युनिटी से मान सकते हैं। अभी आज की बात है, एक मेरे बिसौली में एक यात्रा आई थी जो महाबौद्ध महाविहार मुक्ति मोर्चा करके निकली है, जो बौद्ध भगवान बुद्ध का, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया में, उस बौद्ध गया में आज तक जो है बौद्ध अनुयायियों को उस पर कब्जा नहीं मिला हुआ है। और 14 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक एक यात्रा नोएडा से लेकर के और वो सीधे गया जाएगी और गया जाकर के एक बड़ा आंदोलन के रूप में करेगी। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ये बौद्ध गया खाली नहीं होता है और हमारे अनुयायी, हमारे लोग वहां पर दाखिल नहीं होते हैं, हमारे धर्म को मानने वाले लोग वहां दाखिल नहीं होते हैं, तो 13 तारीख को नीतीश कुमार का पटना में जाकर के आवास को घेरने का काम करेंगे। ऐसे ही एक संकिसा जगह है बौद्ध की, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं चल रही है। बदायूं जनपद में एक मझिया जगह है, वहां पर इस तरीके की घटनाएं चल रही है। अभी मुंबई के अंदर आपको पता होगा एक जैन मंदिर तोड़ा गया है और 90 साल पुराना है, 90 साल पुराना। जैन जो एक देश की प्रसिद्ध कवित्री है, जो पहले बुलडोजर को बड़ा अच्छा मानती थी, आज रो रही है और कह रही है कि ये गलत है, क्योंकि एक दिन नंबर सबका आ जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर यही स्थिति रही तो कल को भारत के सारे चर्चों पर भी नंबर आ सकता है, गुरुद्वारों पर भी नंबर आ सकता है, हो सकता है जो हमारा स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, कल को उस पर भी नंबर आ जाए। तो ये चर्चाएं अब इस देश से बंद होनी चाहिए। अगर चर्चाएं करनी है तो देश पर शिक्षा दर्द हो रहा है। देखिए कक्षा 5 की एक राजीव जी एक चिंता का विषय है देश की बड़ी, मैं इस पर रखना चाहता हूं आपके बीच में। देश के कक्षा NC प्री NC की किताबें 7-7, 8-8 हजार रुपए की आ रही हैं। कक्षा 1, 2, 3, 4 का तो और स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, 10-10, 15-15 हजार रुपए की आ रही है। ये अरबों नहीं खरबों रुपए का घोटाला हो रहा है हर साल। ये एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए कि एक किताब 10 साल तक, कम से कम 5 साल तक उसमें कोई परिवर्तन ना हो। हर साल देश का करोड़ों अरबों रुपया बेकार होता है। किस तरीके से गार्जियंस पर बर्डन डाला जा रहा है। कक्षा 1-2 की फीस ये हालत हो गई है प्राइवेट की। मुंबई में, आप तो मुंबई में बैठे हुए, वहां की फीस क्या होगी मुझे नहीं, वो तो बहुत ही हाई होगी। एक छोटे मोटे कस्बों की फीस बता रहा हूं मैं, 2 से 2.5 हजार रुपए महीने की है, 2 से 2.5 हजार रुपए की। अब आप सोचिए जो व्यक्ति मनरेगा में काम करता है उसकी दैनिक मजदूरी 350 रुपए है। अगर 300 रुपए भी मानते हैं तो 3 9 हजार रुपए। अगर वो 30 महीने काम करता है तो 9 हजार रुपए कमाएगा। और 9 हजार रुपए में अगर उसकी 2-3 बच्चे हैं तो किस तरीके से प्राइवेट एजुकेशन दिला सकता है।
किस तरीके से स्थिति इस देश की बद से बदतर होती जा रही प्रजापति है, साहब, इस पर चर्चा होनी राकेश चाहिए। जी, राकेश प्रजापति साहब, बात यह जब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि मैं पॉवर्टी को एलिमिनेट करा 2 साल में, जीरो पॉवर्टी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया है, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध सर्क्यूट, गौतम बुद्ध का टोटल सर्क्यूट, वहां पर एक पूरे ट्रैवल प्रोग्राम बना दे जिसमें यूपी, उत्तर प्रदेश और इस सेक्टर को, टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त एक जंप मिलने वाला। तो ये सब जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने वाली बात कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप कहां क्रिटिसिज्म भरपूर कर रहे हैं प्रजापति साहब? प्रदीप जी, मेरा मानना यह है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने पूछा था कि प्रयागराज में कितने ऑफिसर पीडीए परिवार के हैं। आगरा में गए तो आगरा में भी उन्होंने पूछा कि कितने पीडीए हैं। ये सबके साथ और सबके विकास की तो बात करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकांश स्थानों में एक विशेष जाति वर्ग का कब्जा है। पूरे प्रदेश में पीडीए नाम मात्र के लिए है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की का नेतृत्व कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और किस तरीके से आए दिन समाज पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर आए दिन घटनाएं हो रही है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है। अभी एनसीआरबी के डाटा आया है 2022 का, उसमें साफ आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है, पहले स्थान पर है, जिसमें एनसीआरबी के डाटा के अनुसार दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार पिछले साल होने का काम पूरे भारत में अगर हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। लाइन ऑर्डर व्यवस्था कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई लाइन ऑर्डर नहीं है। आए दिन लगातार प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, सालों से लगातार एक्सीडेंट होकर के लोग मर रहे हैं। कोई जो हमारे गौशाला बनी हुई है वो केवल नाम मात्र के लिए बनी गई है। गौशाला में किसी भी तरीके की व्यवस्था, देखरेख गायों की नहीं हो रही है। मात्र 30 रुपए की डाइट के लिए दिए जाते हैं, जिसमें प्रधान परेशान है। आप बेसिक रूप से कोई सर्वे करा लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के। गाय एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, और गाय माता भी परेशान है कि उसको भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है। वो वहां पर इतनी गर्मियों में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वो मुख्तार अंसारी जो जेल के अंदर डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैडमिंटन खेलता था, ये पूरे माहौल बदल गए, ऐसे लोगों का मानना है। और प्रजापति साहब आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टिल प्रॉब्लम। प्रजापति साहब देखिए प्रदीप जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने विधानसभा में एक लिस्ट पढ़ी थी कि योगी जी मुख्तार अंसारी पर बात करते हैं, अतीक अहमद पर बात करते हैं, लेकिन उन सिंह पर बात नहीं करते, उन सिंह पर बात नहीं करते। एक लिस्ट पड़ी थी, इसमें कई सारे सिंह के नाम थे, और उन पर किसी पर 40 मुकदमे, किसी पर 70 मुकदमे, किसी पर 80 मुकदमे, उनका नंबर कम आएगा। और दूसरी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को ये एक स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रहे। बताइए, पिछले 2-2.5 सालों से डीजीपी जो प्रदेश का सबसे बड़ा पद होता है पुलिस महकमे का, उस पर ये स्थायी नियुक्ति नहीं दे पा रहे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है, हाँ नियुक्ति दी जाएगी, वो भी अस्थायी दी जाएगी, क्योंकि कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं, किसी को कभी किसी को देते जा रहे हैं। स्थायी नियुक्ति नहीं कर पा रहे, और स्थायी नियुक्ति होगी भी तो किसी सिंह की होगी। वो सिंह कौन हो सकता है पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आखिर धर्म जाति के आधार पर ये नफरत ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी है, अगर कोई व्यक्ति मुलजिम है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो सबको सजा एक जैसी होनी चाहिए। सजा के बीच में जाति, धर्म और मजहब नहीं आना चाहिए। दुरुस्त बात है। लेट मी गो अक्रॉस टू निजाम साहब। निजाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी जो प्रजापति साहब ने जिस चीज का जिक्र किया है, ये काफी देर से चल रहा है, बाय द वे 2022 से चल रहा है।
कि बोध गया जो है, जो बोध गया एक्ट जो है, उसके खिलाफ बहुत बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैंपेन चला रहे हैं। वो कहते हैं कि उसको वापस बुद्धिस्ट को देना चाहिए। महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया में, ये कहा जा रहा है कि ये जो बीजीटीए है, हाँ जी जी, क्या बोल रहे थे आप सर? सॉरी प्रजापति जी, कुछ बोल रहे हैं। आज वो यात्रा बुद्धिस्ट की, वो रथ यात्रा निकली हुई है 14 अप्रैल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से स्टार्ट हुई थी नोएडा से, और नोएडा से चलते हुए विभिन्न जिलों से होते हुए आज वो बदायूं जनपद में आई थी। आज मैं उन भंते लोगों के साथ में था जो पूजिए भंते थे। परेशान है आप। एक और ये कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। आखिर जब बौद्धिस्ट की वो जगह है, बुद्ध की जगह है, तो वहां पर जितने भी बौद्धिस्ट अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं उनको? उसमें बौद्धिस्ट में क्यों, उसका जो ट्रस्ट है उसमें बौद्धिस्ट क्यों नहीं है? उसकी रखवाली पूजा करने वाले लोग बौद्धिस्ट क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कहने का मतलब ये हुआ सबका साथ कर रहे हैं, सबका विकास। जी दुरुस्त बात है। कहने का मतलब ये हुआ तोड़ रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़ने का नंबर। मैं एक बात जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जिसको बीजीटीए कहा जाता है, ये कहा जा रहा है, मूवमेंट है कि उसको रिपील किया जाए और कंट्रोल शुड बी हैंडेड ओवर टू द बुद्धिस्ट, ये कहा जा रहा है। तो निजाम साहब आप कह रहे थे कि मुसलमानों के बीच में लड़ाई करा दी, अब बुद्धिस्ट और हिंदूज के बीच में भी लड़ाई हो रही है, ये कहां रुकेगा? आप बताइए सर। सीधी सी बात है, आपको पिछली पार्लियामेंट के दौरान जी राहुल गांधी ने एक नेता पर कमेंट किया, जो केस हुआ था कोर्ट में जी, 2 घंटे के अंदर सरकार का निर्णय हो जाता है, उनकी सदस्यता ले लेते हैं, उनका घर खाली करा लेते हैं जी। और उसके बाद निशिकांत दुबे नाम का एक इनका सांसद है जी, सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक करता है, सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट। जी। कितनी देर में मोदी जी का जवाब आया या गृह मंत्रालय ने कितनी देर में कार्य किया? उसके बजाय बीजेपी ने यह कह दिया कि साहब हमारा इससे कोई संबंध नहीं आता, आप कार्रवाई कौन करेगा? सर ये दोगली नीति मुसलमानों के लिए और उन गरीबों के लिए है जो बेचारे लड़ नहीं सकते। आज बीजेपी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है उसका एक हिस्सा भी करती है क्या? ये बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी चुप रहिए सर प्लीज। मैं आपको राहुल गांधी जी मुस्लिम है क्या? नया आप शांत रहिए। बोलिए निजाम साहब, आप बोलिए प्लीज बोलिए। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी जितनी चीजों की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट कर देंगे। आपको याद होगा एक स्पेशल सेशन बुला के 10 साल के लिए रिजर्वेशन को महिलाओं का हटा दिया। दर्द बहुत है इनके पास, लेकिन इलाज नहीं करना है इनको, सिर्फ हर चीजों को फंसा देना है कि कहां आप इस देश में लड़ेंगे, क्योंकि इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो निजाम साहब ये बताइए, आज जो मुस्लिम समुदाय है, क्या अशराफ और अजलाफ के बीच में आज की तारीख में तनाव है? जैसे अभी बॉयकॉट, सर देखिए, लेकिन बॉयकॉट बोहरा तो शुरू हो गया ना सर, हर जगह पे अलग अलग जगह पे ये झगड़ा करा रहे हैं। बोहराज जो सर आप समझें, बोहराज का जो कस्टम्स है वो मुसलमानों के कस्टम से बिल्कुल अलग है और उनकी अपनी जो कम्युनिटी है बिल्कुल सेपरेट है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हैं, सारे चीजों पर वो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो चीज उनके यहाँ डोनेट ही नहीं होती उस पर वो बहस कैसे करेंगे? ये मुझे बता सकते हैं क्या? अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनसे धार्मिक इश्यूज पर बात कर रहा है और ये जवाब दे रहे हैं मुसलमानों की गरीबी पर। ये 12 साल से मुसलमानों की गरीबी कहां दूर कर पाए? एक चीज बता दें कि इन्होंने 12 साल इनकी सत्ता को हुआ ना सर, 5 साल अटल जी की भी सत्ता थी, 1.5 साल और दूसरी सत्ता थी, तो ये क्या सो रहे थे? आज अच्छा अगर ये कोई चीज ला रहे हैं और ला क्या रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े हीरो मौलाना आजाद का पोर्टल बंद कर दिया, उनके नाम के पर्ची छुट्टी महाराष्ट्र में भी देश में भी इन्होंने खत्म कर दिया। जितने स्कॉलरशिप मुसलमानों के थे उसको इन्होंने बंद कर दिया। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, सिर्फ समाज को बांटने, निजामुद्दीन जी को बांटने वाली बात करते हैं। मंदिर और मस्जिद के झगड़े की बात, निजामुद्दीन जी पाकिस्तान की बात। राहुल गांधी फिर देश के बाहर, राहुल गांधी जी देश के बाहर फिर गए और फिर देश की आलोचना करने शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के बोले पोल फ्रॉड है, महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है, इलेक्शन कमीशन फंक्शन नहीं करता। ये बार बार जो बाहर देश के बाहर जाके देश का अपमान करना, निजामुद्दीन जी कहां तक ठीक है? नामबियार जी ये शुरू किसने किया?
ये आदरणीय मोदी जी ने ही शुरू किया ना। विदेश में जाकर मोदी जी का बयान है, इनको सुनाइए अपने चैनल से। उन्होंने ये कहा कि भारत में पैदा होना मुझे शर्म लगता है। ये प्रधानमंत्री का बयान है। मगर 65 लाख वोटर 2 घंटे में राहुल जी बिल्कुल वहां सही है, जाके यूएस में 100% करेक्ट है। जाके यूएस, तो यहां पर प्रदीप जी सवाल कौन पूछेगा? सरकार अगर बेईमानी पर तुली है, सरकार से सवाल कौन पूछेगा? आप मुझे बताइए, 1 घंटे में 12 लाख वोट पड़ सकता है क्या? और एक ही परिवार का एक ही एड्रेस में मध्य प्रदेश में 7,000 लोगों का एड्रेस नॉमिनेटेड है, 7,000 लोगों का। मैं आपसे पूछता हूं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप बताइए संभव है क्या? 46 लाख वोट ये ऑलरेडी। अब ये कोर्ट में गया है तो बहस किस बात की? आ जाने दीजिए, चर्चा होगी ना। तो यूएस में बोल से क्या होता है? देखिए, अपनी बेईमानी का हिसाब उनको नहीं देना है, दूसरे के गले में डाल देना है। प्राइम मिनिस्टर ने जो है पैसा उगाही किया, चंदा। मुझे भी बोलने का पूरा ये एकदम सर, ये कमिंग टू यू ओनली। बिल्कुल। उस पैसे का कोई हिसाब है क्या? वी आर कमिंग टू यू सर, इसके बाद आप ही के पास आना विनायक जी। वी कमिंग टू यू सर। जी अंबेडकर साहब बोलिए। कोई अकाउंट नहीं है। अगर जी, वो जी, बेईमानी जी। करे, इलेक्ट्रल बॉन्ड सर, बात हो गई ना? देश देखा बेईमानी करके लूट खाए। बस अब विनायक अंबेडकर जी को सर, निजाम साहब। कंपनियों से भी चंदा खा गए। निजाम साहब, आप अंबेडकर साहब से पूछ लें अगर आपकी इजाजत हो। रिप्लाई सुनिए ना। निजामुद्दीन जी, अंबेडकर साहब बोलेंगे आप प्लीज। विनायक अंबेडकर साहब ऑफ द बीजेपी फ्रॉम पुणे। आज की जो दयनीय अवस्था है, ये क्यों है, ये आज मुझे मालूम पड़ गया कि इतने जिनको कुछ भी दिमाग नहीं है, ऐसे लोग कांग्रेस में भरे हुए हैं और ये मक्कार बोलते हैं दूसरे को। ये तो बेशरम है, इनको कुछ भी झूठा बोलने को उनको कुछ शर्म नहीं आ रही है। तो ऐसे लोग है करके कांग्रेस की अवस्था है। और मेरे जो दूसरे भाई है, प्राध्यापक है, उनको नमन करके मैं उनको इतना ही बोलता हूँ कि सर्वे कुछ भी कीजिए, जो लोग ये जो अपना लोक शासन है, लोकतंत्र है, उसमें सबसे बड़ा सर्वे जो रहता है वो जो वोटर्स मतदान करते तभी हो जाता है कि एखादे सरकार का काम सही है या गलत है। ये कौन सर्टिफाई करता है? डेमोक्रेसी एज पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन तय करता है? तो हमारे मतदार तय करते हैं। तो 2 बार योगी जी को जब मतदारों ने दिया तो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ प्रगति नहीं हो रही है। मैं आपको 100 चीज गुना सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में पहले एयरपोर्ट कितने थे, पहले रोड कितने थे, पहले व्यापार कितना होता था, नौकरियां कितनी मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश जो 6वें स्थान पे था, झूठ मत बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा। प्रजापति जी आपके पास आता हूँ। प्रजापति जी प्लीज। प्रजापति जी ही डिड नॉट इंटरप्ट। आप आपका काम कर रहे हैं वो। प्रजापति जी आपसे क्षमा मांगते हुए, प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, सर दिस इज नॉट डन, सर दिस इज नॉट डन, नो सर। प्रजापति जी ये गलत है सर। सर यू आर अ प्रोफेसर। प्रजापति जी आप प्रोफेसर हैं। प्रजापति जी आप प्रोफेसर हैं, कुछ मर्यादा रखिए। अंबेडकर साहब जब आप बोल रहे थे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, प्लीज एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। अब उनकी बात सुनिए सर, उसके बाद आपको जितना बोलना है बोलिए। लेट हिम स्पीक सर, बोलिए अंबेडकर साहब प्लीज। सर, उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत के स्टेट का जो जीडीपी के हिसाब से नंबर लगता है उसमें 6वें स्थान पे था, अभी वो 3रे स्थान पे आया है। वो क्या अचानक आया क्या? उसका जो कुछ तो भी इनकम बढ़ा करके वो आया हुआ है। और आज उसमें उत्तर प्रदेश में जो रोड्स बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, बाद में यात्रा की सुविधा बनी हुई है, बाद में जैसा उन्होंने एक कुंभ जैसा अच्छा प्रोग्राम किया। अभी ये बात कर रहे थे कि दलित लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आप एक फेमस केसेस सब देखिए कुंभ के बारे में क्या बाहर आई। एक मल्लाह करके समाज है, उसका जो एक नावाड़ी था उसने 130 बोट्स खरीद लिए और कुंभ के दरमियान उसको 130 करोड़ का फायदा हो गया। ये आज रिकॉर्ड में पूरे दुनिया में छा गया है ये रिकॉर्ड, और वो एक उदाहरण हो गया। मगर चाय बेचने वाला, फूल बेचने वाला, फल बेचने वाला सभी लोग जो थे वो हमारे दलित भाई थे और उन सबको फायदा हुआ है। और इस साल का जो कुंभ था, महाकुंभ था, और उसका व्यवस्थापन अतिशय सुंदर, अतिशय नीट और अतिशय अच्छी तरह से किया।
और उसमें उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर बढ़ गया। ये रिकॉर्ड में आया हुआ फिगर है। अभी ये जो बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ तो उनकी मर्जी है, हमको कुछ उसमें नहीं है। हम क्या करते हैं वो जनता समझती Sir, the है। economy of Uttar Pradesh is the third largest state economy in India, and the GDP is 18.63 lakh crores as of 2024-25. तो ये कभी हुआ सर? ये 1.5 साल? नहीं, ये पिछले 3 साल में हुआ है सर। Right. और 4 साल में, सॉरी 4 साल में Right. हुआ है। Right. और अगले 3 साल में एस्टिमेट है सर 2 नंबर पे जाएगा। कि sir, it might even go to number 1. I'm so sorry, Mr. Ambekar. All of us in Maharashtra have to really pull up our socks. Let me tell you very frankly, and I'm not joking over here. वो जो प्रॉब्लम वो यहाँ पर ये चीज हुई है, irrespective of whatever our other friends think, the fact is जो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, अगले 3 साल में unless Maharashtra and Gujarat step up in terms of industrialization, in terms of business, Uttar Pradesh will be the number 1 state in the country in terms Correct. of GDP. That will happen. जी, आप कुछ बोल रहे थे प्रजापति साहब, आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू यू। जी बोलिए सर, प्लीज अंबेकर साहब। तो बेसिकली ये है कि ये मैं जो बोल रहा था वो उतना ही बात कर रहा था कि ये जो ऑन रिकॉर्ड चीजें है, इसको किसी ने एक्सेप्ट किया या ना किया, एक विरोधी दल के नेता होने के कारण उनको कुछ अलग कहना है, तो हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जनता को समझता है। आज उत्तर प्रदेश की हमारी बहना जब बोलती है कि हमें अभी राज्य में सेफ लगता है, तो वो उनका मत है ना। ये जो विरोधी दल है वो उनका मत बदल नहीं सकते। वो तो योगी जी को धन्यवाद देती है, सामान्य हिंदू जो है योगी जी को धन्यवाद देता है। आज बड़े बड़े जो डॉन लोग तो उनको साफ कर दिया, कोई डॉन रहेंगे और आगे के साल में साफ हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनता देती है। 2 बार जनता ने दिया है, पहले बार दिया था, उसका एक्सपीरियंस अच्छा आया करके दूसरे बार दिया, और मुझे विश्वास है कि तीसरे बार भी सर लुकिंग एट महाराष्ट्र, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, 2 चीजें हैं सर, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू देम। अंबेकर साहब, एंड सिंस यू आर फ्रॉम पुणे, आई रियली वुड लाइक योर टेक ऑन दिस। द दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, वहां पर अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात जो है सामने कहें। और दूसरा, जो सूखा पड़ा हुआ है इस वक्त महाराष्ट्र में, दैट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम सर। जो देवेंद्र फडणवीस साहब की जो प्लान थी 2014 to 2018 की, वो कब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड ऑन एन इमरजेंसी बेसिस राइट नाउ। मराठवाड़ा में सर हालत खराब है बिल्कुल। अब आप बोलें सर, अंबेकर साहब प्लीज। जी, आप जो दीनानाथ मंगेशकर का बोला तो उसका 5th रिपोर्ट आ गया और उसके हिसाब से FIR दाखिल हो गई, दर्ज हो गई है। तो वो मामला अभी उनके पुलिस के हाथ में गया है, दैट इज नंबर 1। और देवेंद्र जी की जो पेट स्कीम है, जलयुक्त शिवार योजना, से वाटर लेवल बढ़ती है हर गांव की, हर नदी की, तो वो इम्प्लीमेंटेशन चालू है। वो सूखे में ही हो सकता है, क्योंकि जो जल स्रोत है उनको फ्री करना और उनके उधर जो सब बाकी वेस्ट होता है वो निकालना, ये काम उनका चालू है। थोड़ा सा ये बार में ऊष्मा बहुत कड़क है, उसके वजह से वाटर लेवल डिप्लीट हो गया है, कम हो गया है, तो कोई बहुत जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए टैंकर के लिए जो सुविधा देनी चाहिए वो देने का काम चालू है। जी, द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज, जो आपने कहा, आपने बड़ी शुद्ध हिंदी में बताया उसको, मैं बाकी सबको बता दूं कि जो विनायक अंबेकर साहब बता रहे थे, वो जो अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं, दे हैव टू बी रिचार्ज्ड, और उनको रिचार्ज तभी कर सकते हैं जब आप उनको यूटिलाइज ना करें कुछ देर के लिए। सो पीपल विल हैव टू सफर फॉर एटलीस्ट अ ईयर और 2 years। 2 years later we can actually see the underground water level come up. I hope that really happens. I just want, before you go to Prajapati Sahab, Ambekar Sahab, RSS chief का call, Hindus all unite, all the Hindus unite, एक मंदिर होगा, एक वेल होगा, एक बरियल ग्राउंड होगा। तो ये किस प्रकार से देखते हो? Is it a positive development? Ambekar Sahab, I think you also related with the RSS. Yes, it is a positive development. हिंदू समाज में हर जो छोटे छोटे तबके हैं उनके जो स्मशान अलग है, उसके वजह से उनका कहना है कि हमारा मंदिर एक होना चाहिए, हमारा स्मशान एक होना चाहिए, हमारा गांव एक होना चाहिए, हमारा वेल जहाँ से हम पानी लाते पीने के लिए वो एक होना चाहिए। ही वांट्स यूनिटी, यूनिटी के लिए उनका एक प्रयास है। वंडरफुल, राइट। प्रजापति साहब, आप कुछ बोल रहे थे, अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। जी बोलिए सर। देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर
पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 8 सालों में रोजगार की बुरी स्थिति है। 1,24,000 शिक्षा मित्रों को इन्होंने प्राइवेट करके, बिल्कुल पैदल करके, और 15,000 शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। उसके अलावा अनुदेशक, आप राजीव जी, एक मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक आप बताइए दिन में 60 रुपए में क्या हो सकता है, पर डे 60 रुपए में क्या हो सकता है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग जो है 15 से होंगे, लगभग 15,000 लोग होंगे। 15,000 से ज्यादा रसोइया हैं, 15,000 नहीं, सॉरी, 45,000 रसोइया हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 45,000 जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं उनमें रसोइया हैं। उन रसोइया को पूरे महीने में मात्र 2,000 रुपए मिलते हैं, मात्र 2,000 रुपए। और वो भी राजीव जी आपको मैं बता दूं 6-6 महीने बाद मिलते हैं, 3-3 महीने बाद मिलते हैं। अभी इन्होंने गांव-गांव, हर गांव में, ग्राम पंचायत में एक जन सुविधा केंद्र खोला है, जिसमें हरजन यानी कि वाल्मीकि लगाए गए हैं। उनको 6,000 रुपए मानदेय मिलता है, मात्र 6,000 रुपए। वो भी 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद मिलता है। अनुदेशकों का बुरा हाल है, आशा का बुरा हाल है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बुरा हाल है। प्रदेश के अंदर 17 परीक्षाएं हो चुकी, 17 परीक्षाएं, जिन 17 परीक्षाओं का पेपर आउट हो चुका है। और ये बात कर रहे थे सड़कों की, जब ये आए थे 2017 में, तो इन्होंने कहा था कि जून तक, 2017 तक सारे रोड गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। मैं गारंटी कह रहा हूं, लिख करके दे रहा हूं, एक सड़क ये बता दे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इनका कोई कार्यकर्ता बता दे, इनका कोई नेता बता दे, इनका कोई सांसद बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सड़क गड्ढा मुक्त हुई हो। ये बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की, एक एयरपोर्ट का नाम ये बता दे जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और उद्घाटन कर दिया हो। एक एयरपोर्ट का नाम बता दें, एक एयरपोर्ट का। राजीव जी, बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा। एक एयरपोर्ट का नाम ऐसे का बता दे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उद्घाटन कर दिया हो। ये बात कर रहे थे मल्ला की, उस केवट की। और महाकुंभ के अंदर 4-4 किलोमीटर के लिए 1-1 हजार रुपए लिए गए, 1-1 हजार रुपए। ये धर्म के रूप में किस तरीके का धंधा बना। तो सर ये बताएं, एक मिनट सर 800 रुपए सर, ये वो कमरा 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए में का मिलने का कार्य किया गया। सर 25,000 में गए, आप 20,000 कम बोल रहे हैं। आखिर 20,000 कम बोल रहे हो सर। राजीव जी एक गुना भाग कर लीजिए, कैलकुलेटर कर लीजिए। आखिर उस व्यक्ति ने 3 करोड़ या 30 करोड़ रुपए कैसे कमाए होंगे? उसने जरूर निश्चित रूप से जो कार्य होगा वो कार्य 10,000 रुपए का किया होगा। उन्होंने धर्म को केवल धंधा बनाने का काम किया था। सर छोटी सी बात, ये रिप्लाई हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं, सिंधिया साहब, हमारे निजामुद्दीन रईन साहब के पुराने लीडर, अभी भी वो उनके बहुत प्यार है उनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, निजाम साहब का। उन्होंने ही लेड दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर अंबेडकर साहब थोड़ा ऊपर देखिए, आपकी बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा पिछले साल 9 मार्च 2024 को कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़ एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, मुरादाबाद का एयरपोर्ट और श्रावस्ती एयरपोर्ट, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नए एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए हैं सर अभी तक, और यहां पर एयर ट्रैफिक है। तो क्या सिंधिया साहब ने गलत बोला है सर? इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग? जो पार्लियामेंट की फ्लोर पर टेबल की गई है, क्या ये गलत स्टेटमेंट है सर? अगर है तो सर आपकी पार्टी को प्रिविलेज मोशन फाइल करना चाहिए था, क्यों नहीं किया अभी तक? सिंधिया साहब ने कहा है सर, ये प्रजापति साहब। राजीव जी जवाब दे, देखिए मैंने तो आपको पहले कहा कि ये लोग दूसरे के, देखिए पहले जी बोलिए सर, बोलिए। ये एयरपोर्ट बता दें जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और उद्घाटन भी कर लिया सर। जो एयरपोर्ट बंद थे 20 साल, गंगा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया था और ये कहा था कि 2024 का जब महाकुंभ होगा तो प्रयागराज जी
कहा था और मेरठ कहा था। बदायूं, शाहजहांपुर के लोग, बरेली के लोग सीधे जो है गंगा एक्सप्रेस वे जी, से महाकुंभ नहाने जाएंगे। बताइए क्यों नहीं चालू हुआ? एक एयरपोर्ट बता दें जिनका शिलान्यास उन्होंने किया और उद्घाटन भी हो गया हो। सर ये एयरपोर्ट्स वो हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इस पे एक्सप्लेनेशन जरा पढ़ लीजिए। ये एयरपोर्ट्स वो हैं जो 20 या 22 साल से बंद थे, इनको दोबारा एक बार ऑपरेशनल किया गया है। दैट वे, बाय द वे, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर व्यूअर्स, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने बहुत एयरपोर्ट्स बनाए थे पूरे हिंदुस्तान में जो बंद पड़े थे, जो बीजेपी सरकार ने आकर के उनको दोबारा ऑपरेशनल किया है। बाय द वे, इंक्लूडिंग सूरत एयरपोर्ट। सूरत एयरपोर्ट जो है दैट इज बिकम ऑपरेशनल अगेन। जी निजाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे बस। अंबेडकर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। मैं इतना ही कहता हूँ, जो आपने कहा वही मैं कहना चाहता था। 170 एयरपोर्ट बंद पड़े थे, जी। उसको फेजेस में उड़ान करके स्कीम लाके उन्होंने ऑपरेटिव किया। जी। मैं 4 उदाहरण मेरे इधर के दे सकता हूँ। रत्नागिरी है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, थोड़े से बिजनेस प्लेसेस है, उधर के एयरपोर्ट जो कांग्रेस शासन में बंद पड़े थे वो हमारे शासन ने चालू किए हैं। स्पेशली एंड सम एमआईडीसी आल्सो, कुछ एमआईडीसीज भी हैं जिनके साथ एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, उसको दोबारा चालू किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रजापति साहब, मैं जो अंबेडकर साहब से पहले पूछा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी जिस प्रकार से कहा कि समाज में जो जातियों में मतभेद है उस चीज को एक साथ करके किस प्रकार से दूर किया जाए, एक फॉर्मूला जो दिया था, किस प्रकार से देखते हो प्रजापति साहब? प्रदीप जी, मोहन भागवत ने पहले एक स्टेटमेंट दिया था, शायद वो आपने को पता हो, कि जातियों का निर्माण किसने किया, जातियां किसने बनाई। मैं उस बात को ना जाते हुए मैं तो इतना ही कहूंगा, इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ये सब खत्म नहीं होगी और इसके लिए देश के बड़े नेताओं को कुछ करना पड़ेगा। निश्चित रूप से तभी सफलता मिलेगी, वरना ये जाति व्यवस्था इस देश से नहीं जाने वाली है, क्योंकि जाति एक बंद व्यवस्था है, बंद वर्ग है। व्यक्ति जिस दिन जिस जाति में जन्म ले लेता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, ताउम्र वह व्यक्ति उसी जाति में रहता है। वर्ण व्यवस्था होती तब तो ठीक था, लेकिन इस देश में वर्ण व्यवस्था ना होकर के अब ये देश जाति व्यवस्था से चल रहा है। इसलिए ठीक है, मोहन भागवत जी प्रयास करें ना, पहले अपने ही नेताओं से कहें ना, अपने ही लोगों से कहें ना कि जाति व्यवस्था खत्म करें। ऊपर से करनी चाहिए भाई, ऊपर से रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। क्या कर सकता है कोई रोटी बेटी का संबंध? जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक जाति व्यवस्था खत्म ही नहीं होगी, मेरा तो सीधा मानना है। तो कहने का मतलब ये हुआ जी, रोटी बेटी का संबंध करना चाहिए। बताइए, इसके अलावा कोई दूसरा ना? जी दुरुस्त बात है। लेट मी गो अक्रॉस टू निजाम साहब। भाजपा के नेता इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेकिन वो जाति में नहीं ले रहे हैं, धार्मिक धर्म में ले रहे हैं। मैंने एक दिन सूची पढ़ी थी, जब राजीव जी ने कहा भी था आप कहाँ से ढूंढ के लाइए, बड़ी अच्छी सूची है, मुरली मनोहर जैसी की बेटी किनके यहाँ है, रामपाल जी जी मालूम है सर, आपने कहा था। अरे निजाम साहब, आपकी बात कर रहे हैं, बोलने तो दो। इसके दमाद है। अरे निजाम साहब, कभी कांग्रेस का कुछ होता नहीं है। अरे जब आपकी भी बात होती है तब भी आप बोलने नहीं देते किसी को। बहुत कुछ हो रहा है, कांग्रेस को जो लोग मिटाने के लिए बात करते हैं वो मिटते जा रहे हैं। मुझे लेकिन एक चीज है, एक चीज के लिए तो मानना पड़ेगा आपको बधाई। आज आप मुंबई से देखो कितने बड़े इंडस्ट्रीज, आप अपने यहाँ अभी सर्च कर लीजिए, देश छोड़ के जा रहे हैं। ये इनकी मैं बधाई चाहता हूँ। Thank you, sir. Prajapati साहब, thank you very much. Great pleasure as always talking to you, sir. Whenever you are in Mumbai, please come to our office. कॉफी पीजिए। अंबेडकर साहब तो आते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते, उनको क्या प्रॉब्लम है हमारे से। अंबेडकर साहब को आना चाहिए, एटलीस्ट कॉफी तो पियो सर आगे। मुझे भी जाना है, मुझे एक फोन आ रहा है। चलिए सर, ओके सर, थैंक यू। आई विल जस्ट टॉक टू निजाम साहब। आई नीड टू टॉक टू हिम अबाउट अ फ्यू थिंग्स, स्पेशली विद रिगार्ड टू द कांग्रेस। He with his efforts and the efforts of his president MRCC has actually revived the Congress over here. जी निजाम साहब, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर प्लीज। बोलिए सर, हम तो इनसे यही कह रहे थे कि दो चीज अभी आप सर्वे करिए कि कितने इंडस्ट्रीज इधर इनकी सरकार में देश छोड़ के चले गए। उनको हिंदुस्तान में कारोबार नहीं करना है, क्योंकि या तो उग्रानी हो रही है या उन पर दबाव बनाया जा रहा है। स्वयं महाराज शासन 4 लाख करोड़ के कर्जे में जा रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। 5 लाख सर, 5 लाख करोड़, 5 लाख। अब वो पैसा कहां से आएगा बताइए? वो 1 लाख करोड़ आपने कम कर दिया, रास्ता खोला है इन्होंने। सर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो क्या? देश का इंडेक्स जो है भुखमरी में, पासपोर्ट के कारण में,
सारी चीजों में इन्होंने नाम खराब करके रख दिया देश का। आज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए मुझे बहुत सीरियसली, बड़ी गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूं निजाम साहब। मैं आपको पता नहीं कितने सालों से जानता हूं, हम लोगों ने इकट्ठा काम किया है बहुत। निजाम साहब ये बताइए कि क्या वास्तविकता में, क्योंकि हम लोगों को तो यही लग रहा है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार पासबंदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनके लीडर भी बहुत पासबंदा मुसलमानों की बात करते हैं, अमित शाह साहब भी बात करते हैं, किरण रिजिजू साहब भी बात करते हैं। तो सर आप बताइए, क्या वास्तविकता में अब आगे चल करके जो अगली लड़ाई होगी मुसलमानों के बीच में होगी, एक दूसरे जैसे एक जमाने में शिया सुन्नी हुआ करती थी, आज की तारीख में अशराफ और अजलाफ के बीच में होगी? आप बताइए। सर मुझे बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो गरीबी, भूखमरी और जो पेट की आग है ना, लड़ाई वो शुरू करती है जी। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं इन्होंने। अगर इनको दिलचस्पी है किसी मुस्लिम गरीब, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, उनके साथ जितने आ रहे हैं, क्रिश्चियन आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये सत्ता में कहीं भागीदारी दे रहे हैं क्या? उनको पूरी ताकत है ना उनके पास सर। अगर ये सरकार में वो 2 लोगों के सहारे, उससे पहले 2 सरकारों में तो अकेले थे ना। 300 सांसद थे उनके पास, क्यों नहीं निर्णय लिया? 300 सांसद थे, महिलाओं का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा महिला रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद पहले जो है सारी जांच होगी और दूसरा जो है हम रिजर्वेशन का देख के उसके बाद हम ले आएंगे। यानी आपको देना नहीं है, बहाने बना के औरतों के साथ बेवकूफ बनाने का औरतों को इस देश में। वही काम राज्य की सरकार कर रही है। आपने इलेक्शन में 1500 को 2100 किया और उसके बाद जब सरकार बन गई तो 1500 को 500 करने पर आ गए। उसमें से भी 15 लाख औरतों को देना था, अभी 8 लाख को देंगे। यानी बेईमानी का, इनके झूठ बोलने का ये हाल है कि इनको रोकेगा कौन सर? आप गोदी मीडिया इनसे पूछने वाली नहीं है क्या कहकर आए। प्रधानमंत्री जी क्या क्या कहते हैं और उसके बाद तुरंत बदल जाते हैं। अब आम चूसने का टाइम फिर आ गया। आप किसी पत्रकार को भेजिए, पूछ लीजिए कि भाई आम चूसने का रस कैसा रहेगा, काट के खाएंगे या चूस के खाएंगे? निजामुद्दीन जी, एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया, जिस प्रकार से बीजेपी जुडिशरी पर अटैक शुरू कर दिया। जुडिशरी पर जिस प्रकार से बीजेपी ने अटैक शुरू किया, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने शुरू कर दिया, उसके बाद निशिकांत दुबे वगैरह, और एक के बाद चीफ जस्टिस पर अटैक हो रहे हैं, जुडिशरी पे अटैक हो रहे हैं। तो किस प्रकार से देखते हो, क्या उनको डर लग रहा है कि ये बहुत सारे चीज प्रश्न पूछने लगे अभी और एक स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले लेंगे सरकार? कैसे देखते हो आप? देखिए, जिसके विरुद्ध ये अदालत लाई जा रही है, जिसके विरुद्ध ये सारे चीजें लाई जा रही हैं, उसके थोड़ा सा पीछे जाएं। बाबरी मस्जिद का मुकदमा आपने देखा ना, 400 पेज के जजमेंट में 396 पेज उनके फेवर में है। सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है, कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है कि वहां पूजा नहीं होती थी, नमाज होती थी। सारी कुछ होने के बाद एक लाइन के जजमेंट में यह कह दिया जाता है कि साहब आस्था के नाम पर आपको देना है। क्या इस देश के मुसलमान ने उसका विरोध किया? क्या अदालत के अगेंस्ट किसी मुसलमान लीडर का कभी बयान आया क्या? तो ये तो धमका रहे हैं अदालतों को खुलेआम। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये तरीका क्या है? मतलब आई एम शॉक्ड वेरी फ्रैंकली। चलिए, धनखड़ साहब को तो हम तब से जानते हैं जब वो, लेकिन क्या सर पूरी बात सुन लेना, राष्ट्रपति को ये बात करना चाहिए क्या? सर पूरी बात सुन लेना। जगदीप धनखड़ साहब को तो हम तब से जानते हैं जब वो चंद्रशेखर जी की सरकार में मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हुआ करते थे। हम तब से जानते हैं उनको, तो तब से वो ऐसे ही हैं। जबान मतलब उनकी ऐसी है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बोलते हैं वो। लेकिन एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं जो अभी प्रदीप जी ने बोला, और अभी निशिकांत दुबे साहब बोल रहे हैं। तो मतलब निशिकांत दुबे साहब के खिलाफ कोई तो एक्शन होना चाहिए ना। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल दिया। ये काम तो सरकार को करना चाहिए था ना। जी मैं वही पूछ रहा हूं। काम तो सरकार तुरंत कर सकती थी। निशिकांत का घर गिरवा देती, बुलडोजर चला देती उनके ऊपर, या उनका जो है सदस्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास कर देती, या राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते कि इनको बर्खास्त करो। ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये बात किसी मुस्लिम सांसद या दलित सांसद या अपोजिशन के किसी सांसद ने की होती तो अब तक उसका घर उजाड़ देते। आपने देखा ना सुमन जी का घर तोड़ा ना इनके लोगों ने, क्या मिला? क्या कर लिया सरकार ने? कितने लोगों पर मुकदमा चला दिया? तो जिसको संविधान पर विश्वास नहीं है, जिसको बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर विश्वास नहीं है, ये तो मनुवादी हैं, सामने सीधा खुद कहते हैं, खुद कह रहे हैं, हम क्यों माने? निशिकांत दुबे जी ने एक जो चीज कहा बहुत चौंकाने वाले है निजामुद्दीन साहब, जो आपने हाईलाइट कर दिया है,
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि आप चेहरा मेरे सामने कौन सा है, चेहरा देखकर वो कानून की बात करते हैं। तो क्या वहां पर भी अपीसमेंट की बात है, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी? ये मैं सुप्रीम कोर्ट के या इस चीजों पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है कि आज पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर ये कहे कि भाई मैं किसी राजनीतिक दल में हूं, मैंने विरोध कर दिया, उसको मालूम नहीं है। क्या इनको सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का ख्याल नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजमेंट के बल पर आप सरकार चला रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के अगेंस्ट जजमेंट नहीं दिया होता तो क्या उद्धव की सरकार बर्खास्त होती? जी, जिस तरह की चीजें इनके फेवर में है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनकी है। और जब कोई जजमेंट अभी तो आया भी नहीं, अभी तो सवाल हुए हैं, तो ये धमकी है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कार्रवाई करनी है ना सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कार्रवाई करने नहीं आएंगे ना। तो निजाम साहब, क्या कांग्रेस का अभी ये मत है कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है सर? खुलेआम है। देखिए ये तो सवाल सर, ये सवाल तो ऐसा है कि कहीं उन्होंने छिप कर तो नहीं कहा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा देश का मीडिया चिल्ला रहा है ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर कि क्या निशिकांत दुबे के विषय पर गोदी मीडिया ने एक भी डिबेट कराया क्या? ना। जबकि देश के सीनियर मोस्ट एडवोकेट देश के सब खुलकर बोल रहे हैं कि ये गलत काम है। किस पर कितने दिन पर कार्रवाई हुई? जी, ये तो एक बात। और आज शायद आपके, क्या नाम है उनका सर, आपके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, एक जमाने में ओएसडी हुआ करते थे शीला दीक्षित जी के, क्या नाम है सर उनका, मैं नाम भूल जाता हूँ हमेशा। आज आए थे, बॉम्बे आए थे, उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी आज। हाँ, खेरा जी, पवन खेरा जी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, आपने देखा होगा, मैं साथ में था। जी। तो क्या मतलब वो बॉम्बे में, मुंबई में आकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी नेशनल हेराल्ड के मामले पे, उस पर कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए उन्होंने तो बहुत साफ, जितने मुद्दे बहुत क्लियर कट मीडिया के सामने जो चीजें रखनी थी, आज उन्होंने ही नहीं, आज देश में बहुत सारे जगहों पे कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स ने आज जाकर उन्होंने मीडिया के सामने बात रखी है। खास करके आज जो मीडिया के सामने पवन खेरा जी ने बात रखी और नेशनल हेराल्ड से रिलेटेड सब थे। उन्होंने ये बताया कि टोटल नेशनल हेराल्ड के पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। 6 में से 5 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसे ना वो बेच सकते हैं क्योंकि वो लीज के हिसाब से रखी गई है। और उन प्रॉपर्टी का ना तो प्रॉफिट ना लॉस, उसका कोई विषय नहीं है। उसको एक आंदोलन की तरह चलाना है। नेहरू के वो कमेंट्स और नेहरू के टाइम की सारी चीजें उन्होंने साफ करके रखी कि अगर मेरा आनंद भवन बिकता है तो बिक जाए, लेकिन जो नेशनल हेराल्ड में काम करने वाले लोग थे उनकी सर की तनख्वाह कैसे देंगे? आप मीडिया चलाते हैं, आपको पता है सर की सैलरी कैसे दी जा सकती है जी, और कितना दिन आदमी को आप भूखा रख सकते हैं? ये एक धोखा है। और किस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के नाम पर कि राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। जब प्रॉपर्टी ही नहीं है, उतनी वैल्यू ही नहीं है, तो कभी वो 5,000 करोड़ कहते हैं, कभी 2,000 करोड़ कहते हैं, कभी 500 करोड़ कहते हैं। ये सारे, लेकिन एक चीज यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है सर, मैं माफी चाहूंगा आपसे निजाम साहब, एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि वो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके चार्टर में है कि आप इसको बेच नहीं सकते। यस, सीधी बात है। तो उसमें मतलब फिर केस क्या है? व्हाट इज द केस? चीज ये है कि यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बना के, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों को मर्ज करके दूसरे का पैसा या लोन लाकर उनको चुकाना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि जिस संस्था में, वो कांग्रेस की संस्था थी नहीं, संस्था तो एक बनी हुई थी ना, उसके जितने 3-4 अखबार थे, उसमें जो लोग काम करते थे उनको सैलरी कहां से देंगे आप? आपने देखा कि यहाँ सरकारें किस तरह से, क्या हालात होते हैं, कैसे। अब बेईमानी करके तो नेहरू जी नहीं ला सकते थे ना, चीट करके, जैसे प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा पैसा खा लिया, या उन्होंने जो है पीएम केयर फंड का पैसा ले लिया और आरटीआई से उसको गायब कर दिया। तो ये इस तरह की चीजें तो उन्होंने नहीं किया ना। और उसके बाद जब देश में इस तरह का जब चल रहा था, तो उसी वक्त आपने क्यों नहीं उनका नाम डाला? तो ये सत्यता के लिए पूरी जनता के सामने नेशनल हेराल्ड का विषय पूरे देश भर में आज सारी जगहों पर कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर करके दिया है। लेकिन अब गोदी मीडिया को चाहिए कि उस पर डिबेट कराए, गोदी मीडिया निशिकांत पर डिबेट कराए, गोदी मीडिया जो है सुप्रीम कोर्ट
कितनी अवमानना हुई है और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या उनकी सदस्यता छीन रही है, क्या ये मेरा सवाल है। लेकिन ये तो मैंने तो सुना है, जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा चैनल है, अपने आप को सबसे बड़ा चैनल जो बोलते हैं, सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जो बोलते हैं, वहीं पर बैठ करके कोई भाई साहब हैं जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे साहब ने जो कहा है वो तो कहा ही है, उन्होंने 10 गुना ज्यादा और बोला है, और हर रोज बैठते हैं वो तो उसी चैनल पे। सर इनके यहाँ किसी को लगाव नहीं है ना, जब ये भारत का संविधान नहीं मानते, भारत के अदालतों के कानून नहीं मानते, तो इनसे लेकिन बहस सर करके अदालतें भी तो इन्हीं के लिए रात के 11 बजे खुलती हैं, 12 बजे खुलती हैं, 2 आपने मिनट देखा में बेल ना मिलता अर्नब है। गोस्वामी के केस में आपने देखा ना, बाकी केसेस में रात के सर 12 हम बजे लोगों दिन में को जमानत सर नहीं। हम लोगों को तो जेल हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है, 2 मिनट में चलो बाहर। बट निजामुद्दीन जी, कैसे आप देखते हो, क्या राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर एंड थ्रेट, क्या ये एक के बाद डिसीजन के बाद धीरे धीरे सच्चाई में बदल रहा है? बिकॉज आर्टिकल 370 शुरू हो गए, ट्रिपल तलाक हो गए, राम मंदिर हो गए, वक्फ रिफॉर्म्स हो गए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंपोज करने वाली बात है। तो राहुल जी लगातार हर प्लेटफॉर्म पे आज ही जो है एक वीडियो जारी किया गया है बजाज सर जी, वो वीडियो जो है उसी तरह का दिखा रहे हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास समाज में जाके कुछ बताने को नहीं है कि हमने 11 सालों में ये कर दिया जिससे आपका डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन एक चीज से मैं सहमत हूं सर, का मिलने वाला गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिलने वाला 100 रुपए का हो गया। आप जो रोटी थाली खाते थे होटलों में 18% जीएसटी लगा के 100 रुपए की थाली 400 की हो गई। इनसे जनता नहीं पूछे, इसलिए ये सब कर दो, मस्जिद ले आओ, मंदिर ले आओ, हिंदू धर्म को उससे लड़ाओ, पुजारी को लड़ाओ। ये सारी चीजें, ये सारा क्रोनोलॉजी समझने वाली चीज है कि भूखमरी, बेरोजगारी, अस्पतालों की हालत, इस पर कोई डिबेट करे क्या? आप बताइए, जितनी देर तक आंबरे साहब यहाँ बात कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी गरीबी पर बोला क्या? एक बार उन्होंने सर ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न, हम तो बड़ा छोटा चैनल है सर, लेकिन फिर भी जहां तक हम लोगों का सवाल सच तो दिखा रहे हैं ना सर आप जी, वो तो हमेशा ही दिखाएंगे, नहीं तो चैनल चलाने की जरूरत क्या है, कुछ और कर लीजिए। मेरा तो सीधा है, अगर पत्रकारिता करनी है तो सच बोलिए, नहीं तो कुछ और करिए, सीधी सादी बात है ना। लेकिन निजाम साहब, हम लोग यही चाहेंगे कि जहां तक आपका सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बात करे ना इस पे कि देखिए साहब मेडिकल शुरू की बात कर रही सर, मैं पूरी बात सुन लीजिए। आप देखिए कि एक दिन देर किए बगैर राहुल गांधी पूरे देश में बोल रहे हैं ना। सर एक सेकंड, पूरी बात सुन लीजिए। मेडिकल सर्विसेज का जहां तक सवाल है, भले वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई भी हिस्सा हो हिंदुस्तान का, उनकी हालत जो है बद से बदतर है। जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, मैं सोच रहा था कि अंबेडकर साहब कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे, क्योंकि वो भी खुद पुणे से हैं। उन्होंने भी वही ऑफिशियल लाइन रिपीट कर दी कि भाई FIR हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो बेचारी कर्रा के मर गई। और यहाँ पर सुप्रिया सुले जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, ये चार्ज ऑफ मर्डर होना चाहिए, यहाँ तो मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। आपने पेशेंट को एडमिट नहीं किया, आपकी पेशेंट है वो, शी इज ब्लीडिंग, खून निकल रहा है उससे, चाइल्ड वो प्रेग्नेंट है, खून निकल रहा है, और आप उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद 10 लाख रुपए नहीं है। कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। सर स्कूल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा फीस हो गई है, इतनी ज्यादा फीस हो गई है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें तो आपको वापस लानी पड़ेंगी ना, ऑन इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। हमारी सरकारें जहां जहां हैं जी, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है, आप तेलंगाना देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए, आप कर्नाटका देख लीजिए, तो अभी हम ये नहीं कहते कि हमने 100% किया है, लेकिन इनकी राज्य सरकारों से हमने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब हमारा सरकार फिर से रिटर्न आएगी, आप देखना, इनको हिसाब देना और इनको जेल में रहना है, क्योंकि हम अडानी अंबानी के लिए काम नहीं करेंगे। आपने देखा कि अडानी अंबानी के लिए कांग्रेस काम नहीं कर रही है, राहुल गांधी नहीं काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे किसी नेता को अब खड़ा करने के मूड में नहीं है जो दलाली करे जाके। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो लोग मेरे साथ चले जो देश हित के लिए काम करेंगे, जो बनियों के लिए काम करेंगे, दलालों के लिए उन्हें बाहर करो। I hope that happens. Thank you very much, निजाम साहब. Always a pleasure talking to you. आप इसी तरह काम करते रहें और इसी तरह संघर्ष करते रहें, हम लोग आपके साथ हैं। देश को एक बहुत अच्छा, बहुत निडर और देशभक्त विपक्ष चाहिए, सीधी सादी बात है। ये तो मैं मान करके चलता हूं, और मैं खुद बड़ा खुश हूं, प्रदीप जी भी बड़े खुश हैं कि कांग्रेस जो है एक बार फिर जागरूक हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार सर। नमस्कार।
So Pradeep ji, this Waqf thing is not going to go away, and neither is the Dinanath Mangeshkar Hospital matter. That's not going to go away either. And as far as the merger of MNS with Shiv Sena is concerned, Raj Thakre साहब had ruled it out long time ago. He's ruled it out again. He said merger का तो सवाल ही नहीं, cooperation हो सकती है, merger नहीं हो सकता. और जैसा आप खुद बता रहे थे कि पिछली बार जब cooperation की बात हुई थी तो बाला नंदगांवकर जी को किस तरीके से बेइज्जत करके मातोश्री से भेजा गया था, मतलब क्या, तो उसके बाद merger का कैसे सवाल होता है? Why has this talk come about now, प्रदीप जी? I think unfortunately by what एक इंटरव्यू जो दोस्त की, I mean he gave it to his friend Mr. Manjrekar, and after that everything changed because वो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए जो actually नहीं बोलता normal terms में. So I think he got trapped into what he said in that particular program. जी. And then he's not in the He's not in the country at the moment. He's not in the country at the moment. These guys have all the luck in the world, right? Rahul Gandhi is abroad, Chandrasekhar Azad, Ravan is also abroad, Mr. Raj Thakre is also abroad, just about everybody is abroad. Isn't that lovely? We are the only people working over here in the heat and the dust. But I love this place. I absolutely love Mumbai. And once again, I must congratulate our friend Mr. Sundar Padmuk for the fact that he got those 43 houses cleared and in the names of all those people. So there are still good people working here. Of course, we also had something to do with it. We were right there with him all throughout. In fact, we were the only channel covering that. Only channel. और कोई channel वहाँ पर नहीं आया उस चीज़ को cover करने के लिए. We were the only people covering that. So once again, congratulations to all those guys. And I hope जो कामराज नगर का जो मैटर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा. लेकिन मुझे नहीं लगता साहब कि राज ठाकरे जी की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना उनका कभी विलय होगा. मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है. Both are very top leaders and leaders of their own right. They may work together at some point of time. Everybody works together. After all, if Congress and NCP can work together, why can't they? Exactly. और शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार की भी मीटिंग हुई. और ये भी कहा जा रहा है कि अजीत दादा पवार जैसी कमरे में आए शरद पवार साहब खड़े हो गए. I think the witty old man has thrown the white towel. That's right. He's just said that okay, fine, let's do something. And the same thing is talked by Sanjay Raut ji बोल रहे कि कहाँ अलग है, दोनों एक साथ ही है, एक है उन लोग. तो and this is actually Sharad Pawar ji का great game है कि he's in the government also, he's outside the government also. That's right. Always. He's a master at playing these games. On that there is no doubt at all. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप नेशन नाउ को देखते रहें. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक आपने किया नहीं. वो घंटी भी बज गई है. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और जहाँ तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय.